Hello dear student, welcome back to my channel. I am Shashendra Pavaiya. At this channel you get all the concepts of accountancy, economics and business study thoroughly. In this lecture we are studying the microeconomics. So far we have already covered the first chapter in the first unit of the microeconomics, and that is the consumer behavior, where we studied the three chapters: demand, elasticity of demand and consumer equilibrium. Now we are moving on to our next important and knowledgeable unit, and that is the producer behavior, where we have to complete the four chapters: production, cost, revenue, supply, including producer equilibrium. So, the entire journey of the producer behavior is going to be very interesting. That is why keep your eyes on the prize, because with me you will find all killer, no filler. So let's check it out. You are watching the second part of the prediction theory. This is the first chapter of the producer behavior. In the first part of this chapter, we have already discussed the definition of the prediction and prediction process, prediction function, types of prediction function, short-run prediction function, long-run prediction function. Now, and the input, types of input, variable input, fixed input, output, total output, average output, and marginal output. That is called total product, average product, and marginal product. The definition and the as well as the formula, how to calculate the marginal product or the average product, and the shapes of the TP, AP, MP. So far we have already completed this much. Now still two things are left to be discussed. Number one, relationship between the TP and MP and AP and MP. Second one is the law of return, that we'll discuss in the next part. In this lecture, we are going to establish the relationship between the AP and MP and TP and MP. Is it clear? So without beating about the bush, let's start. Hey guys, myself Umang Nag. I'm a student of Shashendra sir of 2018 batch. I scored 100 marks in economics and total 95.6% in class 12. And this was only possible because I had a very strong base built up by sir. He was more like a friend to us before being a teacher, so it was very easy for us to grab the things. So I would definitely recommend those watching this video to join one-stop classes by Shashendra sir. We are going to discuss, or we are going to establish the relationship between the AP and MP. AP and MP. See, the relationship between the AP and MP or TP or MP has to be established, right, in the three stages. Number one, first of all, we have to write the scheduling, then diagram, and afterwards we have to show the relationship between the AP or MP or TP or MP, whatever, with the help of the scheduling and the diagram. ठीक है ना? We will have to prove it, you know, कि कहाँ किस तरह का कौन सा रिलेशन वहां पर दिख रहा है अपन को. सी, तो शेड्यूलिंग, डायग्राम एंड एक्सप्लेनेशन. तो सबसे पहले क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द शेड्यूलिंग. We can write this way: TP, AP, and MP. TQ in the sense here, in the production concept, TQ directly related to the unit of labor, right? तो मान लेते हैं यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. These are the hypothetical figures, right? The unit of labor जो आप लगा रहे हो यहाँ पर, मान लेते हैं कि हमारे पास, just suppose actually that you are having the one machine, and on that particular machine just you have to increase the variable factors, means labor, and with the help of the labor and the machine, you as a producer want to produce the quantity of the particular commodity, like that. ठीक है, हम क्या, one machine plus one labor, one machine plus two labor, one machine plus three labor, one machine plus 4, 5 and 6. इसका मतलब क्या हुआ कि शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन में हमको पता है क्या, कि हम फिक्स फैक्टर वहां पर देखेंगे मशीन, राइट? तो मशीन को तो चेंज नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द टाइम, बट द वेरिएबल फैक्टर्स कैन बी चेंज्ड, मटेरियल एंड द लेबर. अभी हम यहाँ पर क्या मान के चल रहे हैं, ये लेबर है, क्लियर, जिसको अपन बढ़ा के एज ए प्रोड्यूसर, हम इसको लेबर को बढ़ा के यहाँ पे प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करता है, ठीक है ना? कितना बढ़ेगा, क्या होगा, वो तब देखते हैं यहाँ पर. तो टोटल प्रोडक्शन अपन वन मशीन प्लस वन लेबर, देखो वन मशीन, और अगर मान लेते हैं कि लेबर है ही नहीं है तो जीरो लेबर है, तो प्रोडक्शन कितना होगा, जीरो. क्लियर? वन मशीन प्लस वन लेबर will produce the 10 units of any particular commodity. ये हमारा जंक्शन है. वन मशीन प्लस टू लेबर
30 units, and then one machine plus 3 labor 45 units, then one machine plus 4 labor 52 and 48. This is how we can write here the total production. One machine plus 1 labor will produce the 10 units, one machine plus 2 labor will produce the 30 units, one machine plus 3 labor will produce the 45 units, one machine plus 4 labor will produce the 52 unit, and the 5 unit will again unit of labor, one machine plus 5 labor 52. यहाँ पे कांस्टेंट हो गया प्रोडक्शन, और इसके बाद में यहाँ पर 48, इसका मतलब गिर जाएगा, राइट। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पर कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था, हमने वहां पे पढ़ा था कि शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाकर हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये कहां तक संभव है। ऑब्वियसली दिस इज पॉसिबल ओनली अप टू द कैपेसिटी ऑफ द फिक्स फैक्टर। इसका मतलब मशीन की भी अपनी एक कैपेसिटी है ना, इसके बाद में वो ज्यादा लेबर को ऑब्जर्व भी नहीं करेगा, लेकिन प्रोड्यूसर अगर फिर भी यहाँ पर लेबर को बढ़ाएगा तो उसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, प्रोडक्शन हमारा पहले बढ़ेगा, इसके बाद में डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा, इसके बाद में कांस्टेंट हो जाएगा, और इसके बाद में यहाँ पर नीचे चला जाएगा। 52 से 48 पे गया था, इसका मतलब ये गया नीचे जा रहा है ना, लाइक दैट। अब इसके बाद में यहाँ पर एवरेज प्रोडक्शन अगर अपन निकालते हैं तो एवरेज प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ द यूनिट ऑफ लेबर, राइट। टीपी अपॉन टी क्यू ऐसे अपन बोल सकते हैं। तो टीपी अपॉन टी क्यू इन द सेंस लेबर, ठीक है ना। यहाँ पर अपन लेबर लिख सकता है या यहाँ पर हम टी क्यू लिख सकते हैं, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ द लेबर। तो 10 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 10, 30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15, देन 15 and then 13 and then 10.4 and then 6 8 like this we can see। ये यहाँ पर हमारा इस तरह से एवरेज प्रोडक्शन आ रहा है। एवरेज प्रोडक्शन क्या बताता है, एवरेज प्रोडक्शन बताएगा पर यूनिट प्रोडक्शन, पर यूनिट ऑफ लेबर। इसका मतलब एक सिंगल लेबर की प्रोडक्टिविटी को बताने का काम एवरेज प्रोडक्शन कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर दो लोग मिलकर कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, 30 यूनिट्स का, एक बंदा कितना कर रहा है, 15, या 3 यूनिट्स अगर अपन लेबर की लगाते हैं यहाँ पर तो टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 45, एक बंदा कितना कर रहा है, 15 यूनिट्स का। 52 यूनिट्स का प्रोडक्शन अगर मान लेते हैं कि 4 लोग यहाँ पर कर रहे हैं, तो एक बंदा कितना कर रहा है यहाँ पर, 30 यूनिट्स का। इसका मतलब यहाँ पर एवरेज बताया जा रहा है कि एक यूनिट ऑफ लेबर यहाँ पर कितना प्रोडक्शन करती है। तो इसका मतलब यहाँ पर सिंगल यूनिट की प्रोडक्टिविटी या कैपेसिटी को बताने का काम यहाँ पर हमारा एवरेज प्रोडक्शन कर रहा है। क्लियर सर। चलो अब अपन आगे देखें, यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्शन एमपी क्या होता है, एमपी नेट एडिशन टू द टोटल प्रोडक्शन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ 1 मोर यूनिट ऑफ लेबर, राइट। इसका मतलब एक यूनिट ऑफ लेबर को बढ़ाने के बाद में टोटल प्रोडक्शन में कितना नेट एडिशन होता है वो कहलाता है मार्जिनल प्रोडक्शन। क्या कैसे निकालते हैं, टीपीएन माइनस 1 या फिर डिफरेंस ऑफ टीपी अपॉन डिफरेंस ऑफ टीक्यू। क्या चलो तो टीपी का डिफरेंस देखते हैं, 10 1 के ऊपर यहाँ पर तो एमपी 10 ही होगा। इसके बाद में सेकंड लेबर जब अपन ने लगाया यहाँ पर तो प्रोडक्शन कितना हो गया यहाँ पे 30 यूनिट्स माइनस करेंगे 10 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ गया 20 यूनिट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मोर यूनिट जब हमने अप्लाई किया, हमने का मतलब हम कौन है, प्रोड्यूसर हैं, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। तो व्हेन वी अप्लाइड 1 मोर यूनिट ऑफ लेबर एट दैट मोमेंट, दैट पर्टिकुलर लेबर यूनिट ऑफ लेबर हाउ मच ही प्रोड्यूस्ड, तो यहाँ पर 20 यूनिट्स आ गया। अब इसका मतलब यहाँ पर एक और लेबर को लगाने के बाद में टोटल प्रोडक्शन हमारा एक और यूनिट को लगाने के बाद में इस पर्टिकुलर यूनिट ने, ये लेबर ने कितना प्रोडक्शन करा, मार्जिनल प्रोडक्शन आ गया, एडिशनल प्रोडक्शन यहाँ पे 20 को अपन ने प्रीवियस जो हमारा एक लेबर ने प्रोडक्शन किया था 10, तो 20 को अगर अपन 10 में प्लस करेंगे तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन कितना बढ़ गया हमारा, 10 से 30 पे पहुंच गया। इसका मतलब नेट एडिशन कितना हुआ 20 यूनिट्स का। क्लियर। 1 मोर यूनिट ऑफ लेबर को अप्लाई करने के बाद टोटल प्रोडक्शन में कितना एडिशन हो रहे हैं, कितना हो रहे हैं, 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 20। तो 20 यूनिट्स का एडिशनल प्रोडक्शन किया। एक और लेबर जब आई तो उसने, दोनों ने मिलकर कितना किया, 30 यूनिट्स का किया। ऐसा हमारा ये बता रहा है। इसका मतलब मार्जिनल प्रोडक्शन क्या बताता है, एडिशनल लेबर के द्वारा किया गया एडिशनल प्रोडक्शन। अब थर्ड की बात करते हैं यहाँ पे, 45 माइनस 30 इज इक्वल टू 15, 52 माइनस 45 इज इक्वल टू 7, देन 0 एंड देन माइनस 4। ऐसा अपन बोल सकते हैं। सर ये हो गया हमारा शेड्यूलिंग। क्लियर सर। अब अपन बात करें यहाँ पर डायग्राम्स की। डायग्राम चाहिए हमको, क्या है, मैं रिलेशनशिप बता रहे हो आप एपी और एमपी में बता रहे हो। तो एवरेज प्रोडक्शन का हमने जब डायग्राम बना के देखा था, शेप बना के देखी थी, तो कहां से बोला था कि इट विल रिमेन ऑलवेज पॉजिटिव। 10 से स्टार्ट हो रहा है, कहां पे पहुंच रहा है, मैक्सिमम 15 और इसके बाद में 8 पे जा रहा है।
तो 10 मान लेते हैं कि यहाँ पर 10 यूनिट है और एक लेबर यहाँ से लगाई, तो इसका अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये कहाँ से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे अपन मान लेते हैं। तो ये हमारा यूनिट यहाँ से क्लियर होगा लाइक दिस। ये एवरेज प्रेडिक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये ऊपर गया, हो ये गया यहाँ से और ये नीचे चला गया लाइक दिस। तो ये हो गया 80। इसका मतलब यहाँ पर द एवरेज प्रेडिक्शन विल स्टार्ट फ्रॉम द 10 यूनिट्स विल गो हाईएस्ट, मैक्सिमम पॉइंट कितना है यहाँ पर 15 एंड देन 13 एंड देन 10.4, इट विल गो डाउन अप टू 8 यूनिट। जब हमने 6 यूनिट ऑफ लेबर लगाया तो यहाँ पर 8 यूनिट आ गए। इसका मतलब इसने भी कुछ ना कुछ तो प्रेडिक्शन करा है ना। इसका मतलब इट विल नॉट टच, इट विल नेवर टच और इट विल नॉट कम अप टू द एक्स एक्सेस, इट विल नॉट टच टू द एक्स एक्सेस। यहाँ पर कह सकते हैं एक्स एक्सेस के ऊपर नहीं आएगा, इसका मतलब इट विल ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव। क्या एमपी की बात करें तो एमपी विल ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम द 10 and will go up to 15 and up to 20. This is the maximum point of the marginal prediction. Then it will come down 15, 7 and then 0 and then -4. तो यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं और इसके बाद में यहाँ से अपन डाल देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ सर कि ये हमारा एमपी इस तरह से हुआ। तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर टच हुआ है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव हो गया और ये मैक्सिमम पॉइंट कौन सा था इसका, एपी का 15। तो इसके ऊपर इंटरसेक्शन हुआ। यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर MP इज इक्वल टू AP। इसके पॉइंट के ऊपर अपन बात करें इसके पहले MP इज ग्रेटर देन AP और इस पॉइंट के ऊपर बात करें यहाँ पर तो अपन कह सकते हैं सर एवरेज प्रेडिक्शन इज ग्रेटर देन MP। दिस इज द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द एवरेज प्रेडिक्शन एंड द मार्जिनल प्रेडिक्शन। क्लियर सर। अब इसके बाद में अपन को हमने क्या कर लिया, वी हैव ऑलरेडी written the scheduling and then we have already made the diagram and then we have to establish the relationship between the average prediction and the margin prediction। कुछ पॉइंट्स हैं इसके माध्यम से हम यहाँ पर बता सकते हैं। जिससे अपन बात करें क्या एवरेज प्रेडिक्शन और मार्जिनल प्रेडिक्शन कहाँ से निकला है, दोनों टोटल प्रेडिक्शन से निकला है ना। इसका मतलब टीपी एंड एपी both are derived from the TP, AP and MP both are derived from the TP, ऐसा अपन बोल सकते हैं। तो एक रिलेशनशिप ये हो गया, एक रिलेशनशिप और ये भी हो गया। AP and MP both are increasing 10 से 15 and 10 से 20, but the MP is increasing at the faster rate, 10 से 20 पे जा रहा है यहाँ पर। इस तरह से अपन को लगा। अब इसको ऑफिशियली देखते हैं अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर। फर्स्ट पहला रिलेशन, तो पहला रिलेशन अपन देखेंगे वहां पर अपन बोलेंगे कि बोथ AP and MP are derived from TP, फर्स्ट रिलेशन। सेकंड, AP and MP both are increasing 10 से 15 और 10 से 20, but MP is increasing at the faster rate, because of that only we can see the MP यहाँ पर एवरेज प्रेडिक्शन जो हमारा मैक्सिमम पॉइंट है 15, इससे ऊपर चला गया MP। क्लियर सर। चलिएगा इसके बाद क्या हो रहा है कि AP और MP यहाँ पर दोनों बराबर हो रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर, तो इंटरसेक्शन यहाँ पर हो रहा है। क्लियर लाइक दिस। तो इसका मतलब will cut the AP at its maximum point, this is also one of the relation। इसके बाद में AP and MP both starts declining, इसका मतलब 15 से 13 and then 10.4 और यहाँ पे MP 15 से 7 and then 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि both AP and MP falls, but MP falls at the faster rate। कैसे दिख रहा है भाई, 15 से 7 पे जाते हैं तो कितने यूनिट्स कम हो गया, 8 यूनिट्स, और यहाँ पे 15 से 13 पे जाते हैं कितने यूनिट्स कम हुआ, only 2 यूनिट्स। That is why we can simply say that the both AP and MP are declining or falls, right? But the MP falls at the faster rate। ये भी एक रिलेशनशिप है। अब यहाँ पर आगे देखें, देखो एवरेज प्रेडिक्शन यहाँ पर क्या है 10.4 और मार्जिनल प्रेडिक्शन क्या है 0 है। इसका मतलब यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि टोटल प्रेडिक्शन मैक्सिमम पॉइंट पे होगा 52 पे। इसका उस कंडीशन में हमारा मार्जिनल प्रेडिक्शन कहाँ पे होगा 0। मार्जिनल प्रेडिक्शन में टच द एक्स एक्सिस एंड आफ्टरवर्ड्स इट मे गो नेगेटिव एज वेल। ये दिख रहा है यहाँ पर 0 के बाद में -4 ही जाएगा। कहाँ पे दिख रहा है, एक्स एक्सिस यहाँ पर दिख रहा है, इसके बाद में नीचे गया तो मार्जिनल प्रेडिक्शन क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया। लेकिन अगर मार्जिनल प्रेडिक्शन यहाँ पे 0 हो भी जाता है, ये हमारा 0 पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, ऐसा अपन बोल सकते हैं दिस इज द 0 पॉइंट। ठीक है, तो MP can touch the x axis at that moment, we can say the MP marginal prediction will be 0 and afterwards the MP will go negative। But in both the condition, when the MP is touching the x axis and going to the negative side, in spite of that we can see the average prediction is above the x axis, means always remains positive। कैसे, यहाँ पर 10.4 जब MP हमारा 0 दिख रहा है
इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर यहाँ पर क्या दिख रहा है, एवरेज प्रोडिक्शन यहाँ पे 10.4 है, और इसके बाद अगर एमपी माइनस में भी जा रहा है तब भी हम देख सकते हैं यहाँ पर कि एवरेज प्रोडिक्शन यहाँ पर कितना 8 यूनिट्स का दिखा रहा है। इसका मतलब द एवरेज प्रोडिक्शन विल नॉट कम डाउन एंड टच द एक्स एक्सिस। ये क्लियर हो गया? क्लियर सर? चलो अब अपन बात करें यहाँ पर एक और रिलेशनशिप की। अगर अपन एक और रिलेशनशिप की बात करेंगे तो यहाँ पर सर क्या निकल कर आएगा, देखो एपी और एमपी दोनों की बात करें यहाँ पर कि एपी और एमपी दोनों में 3 स्टेजेस दिख रही हैं अपन को। कौन सी दिख रही हैं? ये वाई एक्सिस हो गया यहाँ पर, इसको अपन बोल सकते हैं दिस इज द वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस के ऊपर अपन क्या लगा रहे हैं, यूनिट ऑफ लेबर, और वाई एक्सिस के ऊपर कितना है यहाँ पर, एपी एंड एमपी, ये वाई एक्सिस के ऊपर है। क्लियर? चलो अब अपन बात करें यहाँ पर एवरेज प्रोडिक्शन और मार्जिनल प्रोडिक्शन, दोनों में ही 3 स्टेजेस दिख रही हैं। कैसे? एवरेज प्रोडिक्शन देखें 10 to 15 बढ़ रहा है, राइट, 15 ये कांस्टेंट हो रखा है, इसके बाद में ये नीचे जा रहा है, इसका मतलब। और दूसरा देखिए मार्जिनल प्रोडिक्शन, एमपी विल इंक्रीज 10 to 20 एंड देन इट विल कम डाउन 20 to 15, देन 7, देन 0 एंड देन नेगेटिव। इसका मतलब एमपी की 3 स्टेज हो गई, इंक्रीज हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, और इसके बाद में नेगेटिव हो रहा है। तो इसका मतलब एमपी शोज 3 स्टेजेस, इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग एंड नेगेटिव। एपी की 3 स्टेजेस दिख रहे हैं यहाँ पर, वो कौन सी है? एपी यहाँ पे 10 to 15 ये इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर एपी क्या हो रहा है, कांस्टेंट पे हो रहा है, ये कांस्टेंट हो रहा है, और इसके बाद में एपी डिक्लाइन भी हो रहा है। इसका मतलब बोथ एपी एंड एमपी shows the 3 stages. MP will rise and then it will fall and then it will go negative. Rise, fall and then negative. Clear? AP will rise means increase and then constant. 15 पे यहाँ देख रहे हैं अपन constant हो रखा, right? And it will come down from 15 to 8 only, but it won't go to the x axis, वो वहां पर x axis के तक जाएगा ही नहीं। तो ओवरऑल अपन कह सकते हैं यहाँ पर 6, 7, 8 रिलेशनशिप आप बता दीजिएगा, तो 3 to 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन बनेगा। आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द होल कांसेप्ट, द होल रिलेशनशिप बिटवीन द एपी एंड द एमपी। क्लियर सर? चलो ये हुआ फर्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेज प्रेडिक्शन एंड द मार्जिनल प्रेडिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं यहाँ पर कि जब हमको रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है टोटल प्रेडिक्शन और मार्जिनल प्रेडिक्शन के अंदर, ठीक है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, डायग्राम चेंज करना पड़ेगा। क्लियर? चलो देखिए यहाँ पे डायग्राम चेंज करके शेड्यूलिंग तो सेम ही रहेगी। हमको देखना है रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी, रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। डन। हम बात करें यहाँ पर सर टीपी और एपी एमपी के बीच में, सॉरी टीपी और एमपी टोटल प्रोडिक्शन और मार्जिनल प्रोडिक्शन के बीच में अगर आप रिलेशनशिप बता रहे हो, राइट, तो उसमें एवरेज प्रोडिक्शन समय निकालने की आवश्यकता नहीं है, तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। जस्ट फोकस ओनली ऑन द 2 प्रोडिक्शन। 1 is the total prediction and the marginal prediction, right? Diagram see, this is how it diagram like this, 1 and 2, O, X and then Y. Total prediction has started from 10 unit and the marginal prediction also started at 10 unit. इसका मतलब यहाँ पर अपन मान लेते हैं कि this is the 10 unit और फर्स्ट लेबर। इसका मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर क्या निकाल रहे हो, क्या मान के चल रहे हो, यूनिट ऑफ लेबर। वाई एक्सिस के ऊपर क्या मान के चल रहे हैं हम लोग, टोटल प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन। एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है, यूनिट ऑफ लेबर। ठीक, स्टार्ट करें यहां से, तो ये गया हमारा टोटल प्रोडक्शन, और यहां से अपन कर लेते हैं, ये हो गया हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन। अब यहां पर 0 ऊपर अपन लेता है, like this. So total, this is the maximum point of the total prediction and this is the 0 point. इसका मतलब when the TP is maximum at that moment we can see the MP is 0,
and afterwards it goes negative. O x and then y. ये हमने देखा है यहाँ पर कि टोटल प्रोडक्शन और एवरेज टोटल प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन की ग्राफ कैसे बनेगी लाइक दिस. The TP will start from 10, then it will go up to 52 and then it will start declining from 52 to 48. तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से अपन कह सकते हैं कि हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो गिर रहा है. इसका मतलब यहाँ से फॉल होता है. That's the false. Clear? अब इसके बाद हम देखें यहाँ पर कि चलो तो टीपी एंड एमपी के बीच में रिलेशनशिप बता रहे हैं. क्या बताएंगे टीपी और एमपी के बीच में रिलेशनशिप वगैरह देखें यहाँ पर. तो सबसे पहले क्या दिखा, बोथ टीपी एंड एमपी इनिशियली इंक्रीजेस बट टीपी इंक्रीजेस एट अ फास्टर रेट. देखो सर, फर्स्ट यूनिट प्लस फर्स्ट वन मशीन प्लस वन लेबर विल प्रोड्यूस द 10 यूनिट्स. वन मशीन प्लस टू लेबर विल प्रोड्यूस द 30 यूनिट्स. इसका मतलब यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, ये टोटल प्रोडक्शन 10 से 30 पे ये भी बढ़ रहा है एंड हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन 10 से 20 पे गया. इसका मतलब यहाँ पर अपन कह सकते हैं मार्जिनल प्रोडक्शन विल इज आल्सो इंक्रीजिंग फ्रॉम 10 to 20. तो बोथ इनिशियली वी कैन से इनिशियली बोथ टोटल प्रोडक्शन एंड द मार्जिनल प्रोडक्शन आर इंक्रीजिंग बट द स्पीड ऑफ इंक्रीमेंट कैन बी सीन द टीपी इज फास्टर देन द मार्जिनल प्रोडक्शन ना. इसका मतलब both TP and MP is increasing 10 to 30 and 10 to 20, but the total production is faster. The speed of increment of the total production is faster than the MP. ऐसे अपन बोल सकते हैं. कैसे यहाँ दिख रहा है 10 से सीधा 30 पे यहाँ पे पहुंच गए और यहाँ पर मान लेते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर. यहाँ पे इसके बाद में फिर 45 और इसके बाद 52 के ऊपर यहाँ पर ये कांस्टेंट हो गया इस पॉइंट के ऊपर. और जब ये वाला पॉइंट आ रहा है तो इस कंडीशन में अपन यहाँ पे जाते हैं तो ये जो पॉइंट है यहाँ से ये टिल्ट होना शुरू हो रहा है तो ये रिफ्लेक्शन पॉइंट होगा. इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, जिस पर्टिकुलर पॉइंट तक टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है इसके बाद में बढ़ तो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है ना, डिमिनिशिंग रेट से. तो उसी पर्टिकुलर पॉइंट को अपन इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं. तो टीपी का यहाँ तक ये फर्स्ट स्टेज खत्म हो रखी है जहां पर टोटल प्रोडक्शन गिरना शुरू होता है 30 के बाद डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा. उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन देख सकते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्शन के जो मार्जिनल प्रोडक्शन जो होगा वो मैक्सिमम प्रोडक्शन पे होगा. कहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट पे होगा, कितना 20 यूनिट्स. तो इसका मतलब यहाँ पर ये क्या है, ये 20 यूनिट्स. इसका मतलब एमपी का मैक्सिमम पॉइंट कौन सा, ये वाला. एमपी का मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पर देखते हैं. व्हेन द टीपी starts increasing at diminishing rate, at that moment we can see the marginal production would be at its maximum point. Is that clear? दोबारा सुनो. When the TP will go increasing at the diminishing rate, at that moment we can say the marginal production would be at its maximum point. इसका मतलब 30 से जब आगे बढ़ेगा 45 तक तो यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन के बढ़ने की जो स्पीड होगी वो डिमिनिशिंग पे होगी. और यहाँ पर अपन कह सकते हैं मार्जिनल प्रोडक्शन 20 यूनिट्स के ऊपर होगा. ये 20 यूनिट्स यहाँ पर अपन देखें 10, 20, 15, 7 इन सब में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है, 20 पे हो रहा है, सेकंड लेबर के ऊपर. इसका मतलब व्हेन टोटल प्रोडक्शन विल इंक्रीज एट इट्स डिमिनिशिंग रेट, उस समय मार्जिनल प्रोडक्शन यहाँ पे 20 यूनिट्स. इसका मतलब मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर क्या दिख रहा है यहाँ पर. तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट के ऊपर जहाँ से ये टिल्ट होना शुरू होता है इधर से, इस पॉइंट से थोड़ा सा कम हो रहा है 45 पे जा रहा है और यहाँ पे 50-50 हो गया. इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है और यहीं पे पॉइंट देखिए यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्शन का जो मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है, इस पॉइंट के ऊपर. इसका मतलब फर्स्ट स्टेज यहाँ पे कंप्लीट हो रही है. इसके बाद में जैसे टोटल प्रोडक्शन यहाँ पर डिमिनिशिंग रेट से जाता है उस समय मार्जिनल प्रोडक्शन हमारा गिरने लगता है. कैसे 20 से 15, 15 से 7. थर्ड देखें, व्हेन टीपी रीचेस एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट. देखो when TP reaches at its maximum point, at that moment the MP is at its zero level. कैसे, इसका मतलब TP जब मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है, कहाँ पे प्रोडक्शन कितना हो रहा है 52, राइट है, यहाँ पे 52 पॉइंट लिखा हुआ है. तो when the TP reaches at its maximum point 52, at that moment MP is 0. इसका मतलब मार्जिनल प्रोडक्शन जो यहाँ पर फोर्थ से फिफ्थ लेबर अपन ने लगाई है, तो फिफ्थ लेबर लगाने के बाद में इस पर्टिकुलर फिफ्थ लेबर का प्रोडक्टिविटी कितनी है दिख रही है, वहां पर 0 है. लेकिन उस कंडीशन में अपन टोटल प्रोडक्शन यहाँ पर देख रहे हैं कि मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर है. कितना है यहाँ पर 52 यूनिट्स का प्रोडक्शन यहाँ पर हो रहा है फिफ्थ यूनिट ऑफ लेबर के समय.
But when we applied the fifth number of the labor at that moment, what did he do? Obviously, he produced nothing. How we can come to know? Obviously, यहाँ पर दिख रहा है मार्जिनल प्रोडक्शन 0 दिख रहा है, इसका मतलब 4 से 5 पे गए, तो ये जो एडिशनल लेबर लग रही है इसका प्रोडक्शन, इसकी प्रोडक्टिविटी कितनी दिख रही है? तो 0 दिख रही है। तो इसका मतलब when the TP is at its maximum point at that moment the MP is 0। क्या दिख रहा है यहाँ पर? ये यहाँ पे शेड्यूलिंग में दिख रहा है और डायग्राम में भी दिख रहा है। ये यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट दिख रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को अपन बोल रहे हैं मैक्सिमम पॉइंट, राइट? इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैक्सिमम, इसके बाद में टीपी इज इट मैक्सिमम पॉइंट एंड द एमपी इज एट 0 पॉइंट। ये यहाँ पे दोनों पॉइंट मिलना चाहिए। जो यहाँ लिखा हुआ है वो यहाँ डायग्राम में दिखना चाहिए। यहाँ कुछ लिखा हुआ है डायग्राम में कुछ तरीके से बना हुआ है, मार्क्स तो कटने ही है फिर तो। क्या सीधी सी बात है कि in case you are giving some other information which is not available inside the scheduling, your teacher will definitely cut the marks. So that is why both the items should be matched with each other, scheduling and as well as diagram. चलो, when the TP falls, इसका मतलब 52 के बाद में क्या होगा? टोटल प्रोडक्शन हमारा गिरता है ना, कहाँ पे गिरता है? 52 से 48 पे गिरा। when the TP starts falling, at that moment the MP goes negative। कैसे? 52 से 48 पे गए तो एमपी क्या हो गया? -4 में गया कि नहीं? यहाँ पर ये -4 क्या यहाँ पर दिख रहा है? ये यहाँ दिख रहा है शेड्यूलिंग में, क्या डायग्राम में दिख रहा है? यस दिख रहा है। 52 के बाद में टोटल प्रोडक्शन हमारा नीचे गया, ये फॉल होता है यहाँ से नीचे की तरफ। जैसे ही टीपी फॉल होगा उस समय मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? माइनस में चला गया। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोड्यूसर को ये समझ आ जाएगा कि यहाँ पर एक और बंदे को लगाने के बाद में यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्शन है बढ़ने की अपेक्षा गिर रहा है। इसका मतलब मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पर, मैक्सिमम यूनिट ऑफ प्रोडक्शन अपन कर चुके हैं 52 के बाद में। फिर 6 लेबर को लगाएंगे तो वहां पर टोटल प्रोडक्शन बढ़ने की अपेक्षा यहाँ पे गिरने लगेगा, फिर 48 और ये माइनस में चला गया। इसका मतलब इस बंदे के आने के बाद में हमारा टोटल प्रोडक्शन माइनस में गया। अब ये क्यों गया, कैसे गया, कहाँ गया, ये यहाँ डिस्कस करने की चीज नहीं है। ये कहाँ पे पढ़ना है अपन को? लॉ ऑफ रिटर्न के अंदर, ठीक है ना? ये लॉ ऑफ रिटर्न के अंदर आएगा कि ये क्यों प्रोडक्शन गिरता है, क्या होता है, लाइक वो सब वहां डिस्कस करेंगे, यहाँ पर नहीं। अभी यहाँ पर तो अपन को सीधा सीधा समझ आ रहा है भाई साहब कि यहाँ पर टीपी और एमपी के बीच में यहाँ पर 3-4 रिलेशनशिप, 4 नंबर का 4 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। तो उस समय यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है? शेड्यूलिंग बनानी है, इसके बाद में डायग्राम, इसके बाद में नीचे यहाँ पर रिलेशनशिप आपको लिखनी है। बस खत्म, इतना काफी है, राइट? लेकिन इसके पहले आप ध्यान रखना है, क्या रखना है? जब अपन शेड्यूलिंग लिखेंगे यहाँ पर आप बनाओगे, इसके पहले वहां पे 2 लाइन अपने मन से लिख देना। क्या लिखना? जैसे अपन एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन के बीच में अगर अपन रिलेशनशिप बताने जा रहे हैं तो अपन क्या लिखेंगे? स्टार्टिंग क्वेश्चन की कैसे करोगे? वहां पे लिखोगे रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेज प्रोडक्शन एंड द मार्जिनल प्रोडक्शन कैन बी एस्टैब्लिश्ड थ्रू द फॉलोइंग शेड्यूल एंड डायग्राम। ये लाइन लिखना है। अगर अपन टीपी एपी के बीच में यहाँ पर रिलेशनशिप बता रहे हैं तो अपन लिखेंगे वहां पर द रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल प्रोडक्शन एंड द मार्जिनल प्रोडक्शन कैन बी सीन और कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द फॉलोइंग शेड्यूल एंड डायग्राम। ये लाइन लिखने के बाद में फिर आपको क्या करना है? यहाँ पे शेड्यूलिंग बनाना है, इसके बाद में डायग्राम बनाए, डायग्राम बनाने के बाद में आपको उसके बाद में आपको रिलेशनशिप लिखनी है 1 2 3 4 5 6 एज पर द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन। वो 3 नंबर का है तो वहां पर 3-4 लिख देंगे अपन। 5 नंबर का अगर मान लेते हैं कि वहां पर वो क्वेश्चन आ रहा है 6 मार्क्स का आ रहा है तो ऑब्वियसली वहां पर फिर थोड़ा सा 3-4 मतलब 6 रिलेशनशिप अराउंड आपको लिखना चाहिए वहां पे, ठीक है ना? शेड्यूलिंग, डायग्राम और इसके बाद में रिलेशनशिप। क्लियर? आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा सब लोगों को। रिलेशनशिप कैसे बनाएंगे टीपी और एमपी के बीच में और टीपी और एमपी के बीच में अच्छे तरीके से। इज दैट क्लियर नाउ? इस लेक्चर में इतना ही। अब अपन को क्या बचा हुआ है? यहाँ पर लॉ ऑफ रिटर्न बचा हुआ है, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।